Okay, so hello everyone, hello all, and I welcome you to this introductory lecture of business environment that is for CSEE. The first examination of CSEE is already has done, and now the result is also declared. So we are preparing for the next attempt of CSEE, which will happen soon. So business environment is a very small portion is CSEE, but it carries a very much importance for all of you. So मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देते हुए आगे इस चैप्टर की तरफ चलूंगी. बिफोर starting with our chapter, let me introduce myself. I am Chandni Arora and I am a CS by profession. Mostly I was in employment, so I know how this business environment actually in a practical life looks at. How business environment, how we deal with this business environment, how the things are going on. So ये सब चीजें मुझे ज़्यादा आपको समझाने में easy है because I have already been in employment. So there are two types of CS you already know. They are more in practice as well as employment. Also, I have been taking lectures of business environment, law, ethics with Superprofs for a number of years. So with my experience in job, with my experience in a corporate field, I can assure you that this particular chapter, this particular subject of business environment carries the utmost importance for everyone who is watching this lecture, who is preparing for CS, either for CA or for CMA. अब सबसे पहले मैं आपको एक बार बिजनेस एनवायरनमेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले मैं सब्जेक्ट में आपको बताती हूँ कि इस सब्जेक्ट में सिर्फ 3 ही चैप्टर है, दैट इज ऑल फॉर CSEE. Why only 3 chapters? Because आगे अगर आप पढ़ोगे, आप जब बीकॉम भी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा. बट CSEE में सिर्फ 3 रेलेवेंट चैप्टर्स डाले गए हैं. एंड फॉर योर it's a good news for all of you. Like before जब मैं पढ़ती थी तो business environment was a subject and was a chapter that only carries a theoretical thing. इसमें कोई practical चीजें नहीं हुआ करती थी. We only used to rectification वाला thing था and it was not relating to your practical thing. But now with this new syllabus of CSEE, what they have done is they have done a very tremendous job in changing this module of business environment, and they have took this practical exposure, the latest going things which are going in the government norms, latest thing which is going in the corporate field, all of these things are taken care in this business environment. तो आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि मैं याद कर रहा हूँ और यहाँ पे ये आगे जाके यूज नहीं होगा. Every single thing is going to be used in your further career. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए let's move ahead, let's see a small glimpse of everything. चलो, so we have 3 chapters in this particular subject, business environment. I'll just explain a little glimpse of all these 3 chapters कि आखिर इन चैप्टर में वो समझाना क्या चाहते हैं और आखिर इन चैप्टर से आपका क्या बेनिफिट होने वाला है in your future, in your exams. So entrepreneurship scenario, business environment and key government institutions. Business environment has been taken as chapter 2. The first chapter is entrepreneurship scenario. Why it has been taken as chapter 1 and why it is very important? Because in this time when everyone wants to start their own business, तो यहाँ पे हम लोग जब business की बात करते हैं, so all of you know कि हर कोई या तो job करता है या तो occupation है, it's a business. So जब business करने जाते हैं and we are, suppose I take example of myself. If I suddenly want to start my practice as a CS, I have my knowledge. ठीक है, मेरे पास knowledge है, मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव वन आइडिया इन माई माइंड विच इज वेरी यूनिक. ठीक है, सबसे पहले तो आपका आइडिया एक यूनिक है, पर आइडिया के अलावा, टैलेंट के अलावा मेरे पास फंडिंग नहीं है. आई डोंट हैव फंड्स, आई डोंट हैव द वे टू हाउ टू जस्ट जनरेट दीज फंड्स, बिकॉज पैसा तो है ही नहीं. तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ. एंटरप्रेन्योर इज समवन हु वांट्स टू स्टार्ट समथिंग विच इज वेरी यूनिक इन नेचर, विच इज इनोवेटिव. ठीक है, जब हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक टाइम था जब हम क्या लेते थे, फिजिकल क्लासेस लिया करते थे, बट नाउ द टाइम हैज कम कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर मी, फॉर यू, एवरीवन. तो ये जो अब चेंज आया है, समवन हैज डेवलप्ड दिस चेंज.
So the person who has developed this change, उसको भी हम क्या कहेंगे, entrepreneur कहेंगे, who has developed a business and who has developed an idea which is innovative from all. Traditional तो अभी भी चल रहा है. So this is the one chapter. Why they are focusing on this chapter? Because now every one of you know कि इंडिया में majority of the, अगर हम country की population की बात करते हैं तो we have majority of the population as youth, as every one of you know. So youth क्या होता है, and कहीं पे आपने कहीं पे सुना भी हो अगर कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के पीछे हमेशा उसके यूथ का हाथ होता है, एंड इफ द कंट्री इज डेवलपिंग इट्स बिकॉज ऑफ द यूथ. तो इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस यूथ. इन चाइना, जापान, ऑल ऑफ देम दे आर ट्राइंग कि वो अपने यूथ के साथ कैसे उनकी स्किल्स को डेवलप कर सके. तो इंडिया में भी अब वो यही चाहते हैं कि everyone who has one idea, who has a potential कि वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, they can do so. ठीक है, तो उसके बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम्स, बहुत सारे उन्होंने नए नए लेके आए हैं, so that every one of you who has something they can come ahead. Next come business environment, the core chapter of this particular subject. So business environment का क्या मतलब होता है? When you do a business or when you enter a corporate life, there is an environment that is around you. Suppose मैं आज एक फैक्ट्री खोलती हूँ, suppose my factory is for a biscuit manufacturing factory, which is a very simple factory कि मैं बिस्किट बनाती हूँ, ठीक है. सो एक बिजनेस के आसपास जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जैसे हमारा घर है, हमारे घर के आसपास का इन्वायरमेंट क्या होता है? वी हैव सम शॉप्स, वी हैव नेबर्स, वी हैव द सोसाइटी, सिक्योरिटी गार्ड्स, ऑल ऑफ देम, ठीक है. तो ये हमारे घर का इन्वायरमेंट है, हमारी फैमिली. वैसे ही हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होगा, वेयर हमारे बिजनेस के आसपास क्या क्या चीजें होती है? हमारे कस्टमर्स विच आर ट्रीटेड एज गॉड. तो अगर मैं एक फैक्ट्री खोल के बैठी हूँ एंड आई हैव माई कस्टमर जो मेरा बिस्किट खरीदना चाहते हैं, बी इट किड्स, बी इट अडल्ट्स और बी इट सीनियर सिटीजन्स. आई हैव माई कॉम्पिटिटर्स. अब मैं अगर पार्ले जी हूँ तो आई हैव माई कॉम्पिटिटर एज ओरियो और सम अदर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग में कौन आते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर्स. देन कम्स गवर्नमेंट. अब मैं बिस्किट बना रही हूँ, मैं बिस्किट बेच रही हूँ, ठीक है, मुझे इनकम हो रही है, आई एम जनरेटिंग अ इनकम, एंड उस इनकम को, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी इनकम अपने पास रख सकती हूँ, वी हैव टू पे सम टैक्सेस. तो टैक्स जब हम पे करेंगे तो कौन इन्वॉल्व होता है हमारे बिजनेस में? गवर्नमेंट. सिमिलरली कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि इफ आई एम हैविंग अ फैक्ट्री, तो क्या एक फैक्ट्रीज एक्ट है जो हम पे लगता है? फैक्ट्री चलाने के लिए कुछ कानून है जो मुझे फॉलो करने चाहिए. कितने एम्प्लॉयज होंगे, क्या मैं उनको सिक्योरिटी दे रही हूँ, क्या किसी अनसर्टेनिटी में, क्या किसी हादसे में मैं उनको सपोर्ट दे रही हूँ, एम आई प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी. तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज एक्ट, तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई भी लॉ में चेंज होगा तो मेरी बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आज मैं बोलूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन मैम बताओ, इतना सब नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगी कि एनीथिंग which has an influence or an impact on our organization is business environment. मैं एक बिजनेस हूँ और मेरे बिजनेस में अगर कहीं से भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है बाहरी दुनिया का, ठीक है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है. आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर with my statements, with my examples. Now, the third chapter comes, this is a key government institution. Key government institution की अगर मैं बात करने जाऊं तो मैं इसे बहुत important chapter मानती हूँ अपने लिए और आप सबके लिए. मैं शुरू में कह रही थी ना कि CSEE का जो अब एग्जाम का पैटर्न है, इट इज़ वेरी फ्रेंडली, इट इज़ वेरी यूनिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इन योर फ्यूचर. तो अब मैं यहाँ से लिंक करके मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों आपको पढ़ने हैं. इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं हमारे, और हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैव प्लेंटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. आपको क्यों पढ़ने हैं? आप व्हाई अ CS हैज टू नो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन? reason I have to tell you about linking with my example, because when you enter as a company secretary you have some responsibilities. company secretary का काम क्या होता है? that you are a link between your company and outside.
कंपनी सेक्रेटरी लॉ कंप्लाई करता है तो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन कास्टेड अपॉन यू. अगर किसी भी काम के लिए यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ कंपनी, तो एक कंपनी सेक्रेटरी को ही आगे किया जाता है एंड यू आर द वन हु हैज टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ in front of every government institution. Suppose you join your organization and there is a issue going on with jal board of your company, and jal board with your company. ठीक है, चलो जल बोर्ड में तो फिर भी आप किसी और को आप कर सकते हो. सपोज देयर इज अ केस जहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है एंड इनकम टैक्स हैज कास्टेड अ पेनल्टी अपॉन यू. तो इस केस में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को ही कहा जाता है. सपोज कंपनी हैज नॉट फाइल्ड अ पर्टिकुलर थिंग्स और उनके ऊपर पेनल्टी लग गई है, ठीक है, देयर इज अ you have to go, you have to deal with the organization, with the institution. तो इसमें कोई और नहीं आगे आएगा, कंपनी सेक्रेटरी हैज टू गो, दे हैव टू कन्विंस, दे हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वहां से मांगी जाएगी, यू आर द वन. तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वेयर दे आर लोकेटेड, हाउ टू अप्रोच देम, हाउ टू कन्विंस देम, बिकॉज एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको ये सारी चीजें डे टू डे में देखने का, कभी आपके ऊपर इनकम टैक्स का कुछ आ जाएगा, कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन इनकम टैक्स से आ गई, कभी आपको आरओसी से कुछ मांग लिया. सिमिलरली जल बोर्ड से देयर आर plenty of issues going on a daily basis with the company between these institutions, because as a business आप काम करोगे तो आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई गवर्नमेंट का नॉर्म कहीं ना कहीं आएगा. तो कहीं ना कहीं जब आएगा तो इश्यूज भी आएंगे, जब इश्यूज आएंगे तो यू आर द वन, द कंपनी सेक्रेटरीज आर द वन हु हैज टू रिप्रेजेंट दिस. दैट्स व्हाई आपको पढ़ाया जा रहा है एंड इट इज फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. चलो, आज के इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं ज्यादा तो आपको नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो का छोटा छोटा पार्ट जहां तक मैं करा सकूंगी मैं इसे कराने की कोशिश करूंगी, सो दैट आपका एक बेस क्रिएट हो जाए विद दिस subject. And I assure you that this particular subject is so easy and so smooth that when you read it आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा कि when you step out as a qualified CS तो आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी. So with this let's start. So this is the first एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो में. एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है मैंने आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन किया था, बट लेट्स हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मल डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म. This term has you have already been read in this particular 11th में आपने ये चैप्टर पढ़ा है और आपको अच्छे से ये बात पता भी होगी कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है. बट सम ऑफ यू माइट नॉट नो दिस, तो हम लोग शुरुआत से फ्रेश स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच. तो एंटरप्रेन्योर इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, organize and run a business enterprise along with uncertainties in order to make a profit. सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक बिजनेस होता है. व्हाट डज अ बिजनेस डू? बिजनेस का मतलब होता है कि हम कोई काम करेंगे एंड वी वांट टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ दैट बिजनेस. ठीक है, यही होता है. तो जब हम बिजनेस करते हैं, सपोज आज मेरे को लगता है कि जॉब वॉब मुझे नहीं करनी, आई हैव टू डू माई ओन बिजनेस, तो मैं बिजनेस करने का सबसे पहला फर्स्ट गोल क्या होता है? हम बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. तो अब दो तरीके की चीजें आती है. एक आता है कि मैं बिजनेस करने जा रही हूँ, लेट्स हैव अ बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में है. ठीक है, एक ऑलरेडी मार्केट में है तो मैं उस बिजनेस को करती हूँ. तो वो बिजनेस आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, एवरी वन ऑफ यू हैव बीन डूइंग इट. बट कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो मैं सोचती हूँ कि मैं करती हूँ, बट दे आर ऑफ सम यूनिक नेचर, दे हैव समथिंग विच इज इनोवेटिव. ठीक है, जो आप करोगे तो इट गिव समथिंग टू सोसाइटी एज वेल, और कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आएगी. इट इज अ इनोवेटिव थिंग. ठीक है, ऑब्वियसली जैसे बिजनेस में अनसर्टेनिटीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में तो और ज्यादा, क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर इफ यू आर टेकिंग आउट समथिंग, इफ यू आर गेटिंग अ आइडिया एंड उस आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके साथ अनसर्टेनिटीज आएंगी. बट जब मेरे अंदर एक एबिलिटी है, अभी सिर्फ एबिलिटी की बात हो रही है, मेरे पास एक एबिलिटी है, रेडीनेस है
कि मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज डेवलप कर सकती हूँ, आइडिया है मेरे पास, अगर उस डेवलप हो जाए तो मैं उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ और उस बिजनेस को मैं चला सकती हूँ, और रास्ते में कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी, कोई भी ऊंच नीच होगी तो मैं उसको बेयर करने के लिए तैयार हूँ, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कोई भी नया बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वी आर ट्रीटेड एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, दीज फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमैटो, ठीक है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस अब इतना ज्यादा एक्सट्रीम, विदाउट देम मुझे लगता है कि सर्वाइवल ही नहीं है। तो हाउ दे केम अप, दे वर द न्यू आइडियाज। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि फ्रॉम योर फोन और फ्रॉम योर कंप्यूटर यू कैन ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। हो सकता था? नहीं हो सकता था। आज से कुछ साल पहले आप सोचो तो नहीं हो सकता था, बट all these people have made this possible with this ideas, with their entrepreneurship capabilities, कि आज उन्होंने ऐसी चीजें डेवलप कर दी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जिसके पास एक एबिलिटी है। सबसे पहले तो एबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, मतलब अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, मेरे पास आइडिया है बट आई डोंट वांट टू, तो वहां ही मैं आइडिया तक ही रह जाऊंगी। देयर इज अ लेवल, देयर इज अ स्टेजेस। सबसे पहले एक आइडिया जनरेट होता है, उसके बाद हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कराते हैं, फिर ऑर्गेनाइज, फिर रनिंग। तो अगर हम आइडिया पे ही स्टॉप हो रहे हैं तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसको एस्टैब्लिश करना, उसको सक्सीड करना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? स्टार्टअप वेंचर्स। ठीक है, और ऑब्वियसली साथ में हम अर्न क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट। तो अगर आप थोड़ा सा आज सर्च करके देखना टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, इन वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा द पीपल हु फाउंडेड मैकडोनल्ड्स, द पीपल हु स्टार्टेड, मतलब आप देखोगे तो कैसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं एंड हाउ दे डेवलप एंड हाउ दे रीच टू द पॉइंट कि जहाँ पे उनके कोई कंपटीशन में नहीं है, तो दे आर द ट्रू एंटरप्रेन्योर्स। आप इनके बारे में आज जरूर पढ़ना, दिस इज योर होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो, तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। मैंने आपको बताया था ना कि न्यू आइडियाज होने चाहिए, न्यू इनोवेशंस लेके आनी है। ठीक है, इससे पहले आज तक, ठीक है, आज तक ट्रेडिशनली अगर आपको अपने लिए कुछ ऑर्डर करना है, आप कुछ लेने जाना है, तो आप जाते थे। नाउ if you want to buy a sari, then sari is also coming online. If you want to buy grocery, grocery is also coming online. If you want to buy, if you want to take cleaning services, the cleaning service is also available online. So all these people have just developed the ideas and have they implemented it, now they are called a successful entrepreneur. चलो, अब मैं बोलूं कि आज बोलूं कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो कैन आई कॉल माई सेल्फ एंटरप्रेन्योर? तो उसको कहने के लिए मतलब होता है ना कि आई कैन प्राउडली से इफ आई एम एंटरप्रेन्योर और नॉट, तो इसके लिए मुझे ये सारे पॉइंट्स पे खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ एंटरप्रेन्योर। तो अभी मैं तो नहीं हूँ, बट स्टिल लेट्स रीड द पॉइंट्स वन बाय वन। क्या आप हो? ठीक है, सबसे पहले एबिलिटी टू टेक रिस्क, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, business is equivalent to risk। तो अगर आप रिस्क की बात करो तो इट कम्स हैंड इन हैंड। तो जहां बिजनेस वहां रिस्क, लॉस होने के 100% चांसेस हमेशा होते ही होते हैं। नेक्स्ट कम इनोवेशन। इनोवेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इट शुड बी अ न्यू थिंग, इट शुड बी अ न्यू आइडिया। न्यू, ठीक है, क्यों न्यू? क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें ट्रेडिशनल की, तो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस तो ईयर्स एंड ईयर्स से आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स कोई ना कोई आपका कर ही रहा है। बट व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? इट कम्स विद इनोवेशन। ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट। ठीक है, आजकल मार्केट में नए नए प्रोडक्ट, अगर आप बहुत छोटी छोटी चीजों की बात करो तो प्रोडक्ट नए आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेम वही प्रोडक्ट, अगर हम एक नॉर्मल फैन बना रहे हैं तो वो तो हमेशा से बनता आ रहा है, क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाए जो आज तक मार्केट में नहीं बना। ठीक है, विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। अब बीइंग अ एंटरप्रेन्योरशिप मींस कि यू आर गोइंग टू बी अ बॉस ऑन योरसेल्फ। मैं आज तक किसी के अंडर काम कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट अ बॉस। समझ रहे हो? एंड व्हेन यू कम इनटू अ बिजनेस, व्हेन यू कम एज अ एंटरप्रेन्योर, आप ही बिजनेस के बॉस हो, आप ही लीडर हो, एंड यू आर नॉट अ पर्सन हु फॉलोज एनीवन एल्स।
आप ही हो जिसको फॉलो किया जाएगा. So you should have the quality of a leader. You should be visionary. What is a visionary person? Visionary person जो थोड़ा सा दूर की सोचे, not a short term. मतलब उसका कुछ vision हुआ and vision should be clear कि how and where he wants to go. उसके बाद चलते हैं आगे कि एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी हैव अ क्लियर विजन एंड लीडरशिप क्वालिटी. लीडरशिप क्वालिटी क्यों चाहिए? अब मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज let me give my idea to all of you, because when I few years back I wanted to start my own business and I wanted to open a restaurant. तो मैंने सोचा कि let's open a restaurant और I wanted to make variety of samosas and all. So this is my real idea, ठीक है? So you cannot laugh on this, but you can hear it. So I wanted to open a samosa hub types, ठीक है? So I wanted कि let's have a samosa hub और उसके लिए मुझे आइडिया चाहिए था. आइडिया तो मेरे पास है. I needed फंडिंग तो मेरे पास नहीं थी. फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, because when I want to start a business and that to a restaurant, I want a cook, I want a person who can serve the samosas, I want a person who can clean, ठीक है? I want a delivery boy. So all these people will be going to work under me. So I have to be a person who with a good leadership quality. मुझे ही तो बताना पड़ेगा. मेरा आइडिया है ना. अब मेरा आइडिया है कि मेरे पास 100 type of samosas हो. That means I have to deliver my idea to the person who is working just with me. I can't say under me, but with me for my goal. समझ आ गया? उसके बाद open minded. Open minded मतलब broad minded. Open minded, what is the open minded? Open minded मतलब to take care of the situation what is going on, to always have a, मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि our eyes and our mind should always be open, ठीक है? मतलब हमेशा दिमाग और आंखें खुली रखो. तो दिस इज एक्चुअली द ट्रू मीनिंग ऑफ ओपन माइंड. ओपन माइंड मतलब कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको ग्रैब कर लो. अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके नॉक करेगी डोर पे कि आई एम द अपॉर्चुनिटी, आप मुझे अपॉर्चुनिटी को लो. नो, इसमें हमारा क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे को इन्वायरमेंट में हो रहा है हम उसे कैसे ग्रैब करें और अपने बिजनेस में लेके आए. एग्जाम्पल, ड्यू टू दिस कोरोना, when in January, Feb में अगर हम बात करें, and the जैन और फेब की अगर हम बात करते हैं, तो जब कोरोना का जस्ट अराइवल था इन द वर्ल्ड, तो कुछ लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी समझा एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, दे स्टार्टेड मेकिंग सैनिटाइजर्स, दे स्टार्टेड मेकिंग मास्क, ठीक है? दे स्टार्टेड मेकिंग पीपीई किट. इंडिया में उस टाइम पे कोई भी अराइवल के नहीं थे, but still they started doing in India and now their business is flourishing. Why? Because they saw the need of mask, they saw the need of sanitizer. Earlier in this particular market, sanitizers were not a thing जो हर कोई बनाता हो, हर कोई availability उसकी हो. There are top brands that were making sanitizers and which was used very in a limited quantity. But now they saw this is an opportunity. मतलब कोरोना वायरस के बीच में भी उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा एंड दे टुक बेनिफिट एंड देयर कंपनी टुक अ ह्यूज लैडर. सो दिस इज कॉल्ड ओपन माइंड. दिस इज कॉल्ड टेकिंग योर आईज एंड माइंड ओपन. नाउ फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मतलब कि अब ऐसी कोई चीज, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब भी होता है कि ओपन फॉर चेंजेस. मतलब कोई भी अगर चीज ऊपर नीचे हो तो वी शुड बी चेंज, मतलब वी शुड बी नॉट बी रिजिड. अब आज अगर मैं ऐसी, मतलब मान लो कि आई एम मेकिंग jeans, I'm making a jeans and the jeans fashion is similar to the jeans का एक fashion है, ठीक है? And suppose market में उस jeans का fashion खत्म हो जाता है because in trend it has become useless, ठीक है? अब कोई उस jeans को पहनना नहीं चाहता and the new type of jeans has come into trend and most of the companies are making that jeans, designer jeans है. But I being a rigid person, मैं कह रही हूँ कि मैं तो वही बेचूंगी, मैं तो जबरदस्ती वही बेचूंगी, किसी को खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदना हो तो नहीं खरीदे. This particular mindset
मैं तो वही करूंगी इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज रिजिड। तो फ्लेक्सिबल मतलब कोई भी चेंज आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं हमेशा नोकिया लेती हूँ, बिकॉज जब स्मार्टफोन्स का बिजनेस मार्केट में आया तो नोकिया ने उस नीड को ना समझते हुए अपने स्मार्टफोन बहुत लेट लॉन्च किए, बट द कंपनीज टिल द टाइम, कंपनीज लाइक सैमसंग, दिस रेडमी, दे हैड टेकन ओवर द मार्केट एट मतलब एट अ वेरी ह्यूज लेवल, कि अब जाके अगर हम नोकिया की बात करें तो दे आर अनेबल टू कैप्चर द मार्केट लाइक बिफोर। तो वही है ना कि जब रिजिड हो गए, दे वर नॉट ओपन माइंडेड, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद नो योर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली इफ यू आर सर्विंग समथिंग, सर्विंग अ सर्विस और अ प्रोडक्ट, यू शुड नो योर सर्विस और प्रोडक्ट अ बेटर। कैसे लेटेस्ट ट्रेंड के साथ आप चल रहे हो, कैसे आप किसको टारगेट कर रहे हो। इफ आई एम मेकिंग अ समोसा, so I have to target one person कि मैं किसको करना चाहती हूँ, मैं किस टाइप ऑफ कस्टमर से उसको पसंद कराना चाहती हूँ, ठीक है। व्हाट विल बी माय प्रेफरेंस। अगर मैं कोई चीज बेचूं तो मुझे उनकी नीड को समझना पड़ेगा। अगर मैं किड्स को टारगेट कर रही हूँ तो द प्रोडक्ट शुड बी समथिंग व्हिच अट्रैक्ट्स किड। अगर मैं यूथ को कर रही हूँ तो यूथ को अट्रैक्ट करे, ठीक है। चलो, ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स टू हाउ टू be an entrepreneur, and if someone has qualities like these, then you are ready to fly high in the sky, ठीक है। तो अगर अभी भी आप में से किसी के पास भी ये एबिलिटीज हैं तो दैट मीन्स यू आर गुड टू गो विद योर ड्रीम आइडिया, ठीक है। चलो, अब सबसे बड़ी बात जो है कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंडिया में ये नीड अब समझी गई है कि दैट पहले क्या था कि इस नीड को इतना नहीं समझा गया था, बट नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट द यूथ आर बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। सो यूथ को टारगेट करना है, ठीक है। तो दे हैव कम विद नंबर ऑफ इनिशिएटिव। इफ यू रीड on Google, if you search online, you will come to know about this number of initiatives taken by government in few years. Startup India, Make in India, Stand Up India. So these all are initiatives for all of you if you want to start some business. So मैं इस particular initiatives को मैं डिटेल में तो नहीं डिस्कस करूंगी बिकॉज दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, बट आई विल गो, I will let you know कि इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से इनिशिएटिव्स डिस्कस किए गए हैं। सो वन इज मेक इन इंडिया। नाम से ही पता चलता है कि इंडिया में बनाओ। वाई इंडिया में बनाओ? बिकॉज आज तक क्या था कि हमारी कंट्री हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी कंट्री कभी भी आगे नहीं आ पाई है, अभी तक नहीं आ पाई है। कुछ मोस्टली प्रोडक्ट्स अगर आप देखें, इफ यू टॉक अबाउट दिस एप्पल, इफ यू टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट, सारे इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर। मोस्टली द कार्स आर आल्सो मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया। हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं है। बाहर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया में आते हैं। एंड इफ वी वांट कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो लाइक चाइना, सो वी हैव टू मेक आवर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो इसी को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लेके आए हैं। आपने इसका लोगो हमेशा से देखा होगा कि मेक इन इंडिया, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोगो। उसके बाद मैं बात कर रही थी स्टैंड अप इंडिया। दिस पर्टिकुलर लोगो is for stand up India, and stand up India is for the entrepreneurs who have the idea but they don't have this particular फंडिंग प्रोसेस। तो इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं इनिशिएटिव में दे हैव टारगेटेड वुमेन एंड दे हैव टारगेटेड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो वुमेन क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली in our country women have still not got the position they deserve. So इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए वुमेन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेके इन्होंने ये स्कीम बनाई है। एंड दे कैन गेट, अगर उनके पास कुछ आइडिया है, दे कैन अप्रोच द गवर्नमेंट एंड दे कैन गेट द लोन। तो यहाँ पे कितना लोन ले सकते हैं, कौन एलिजिबल है लोन देने के लिए, ठीक है। लोन है 10 लाख से लेके 100 लाख तक का, 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो इस स्कीम के अंदर। देन कम्स द स्टार्टअप इंडिया, जो आपने सबने इस स्कीम के बारे में पढ़ा ही होगा
Startup India is a scheme which is especially for the young people who are coming with a idea. तो स्टार्टअप इंडिया से भी बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो फायदा अब भी हो रहा है. बेनिफिट्स थे हमारे, बहुत सारे बेनिफिट हैं स्टार्टअप इंडिया के. देन कम्स द स्किल इंडिया. स्किल इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है बिकॉज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. हमारे देश में skilled labor nahi hai, like in China and Japan. Still I'm talking about this China and Japan because they have people who are skilled, but in our country people are not skilled. They are unemployed but they are not skilled. तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है जिसमें उनको एक ही पर्टिकुलर चीज में स्किल दी जाए. तो now they have come up with this Skill India program also, that they are going to develop the skills of the people. तो ये NSDC एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इन गवर्नमेंट की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड नाउ दे आर फोकसिंग कि उस NSDC के साथ मिलके स्किल डेवलप की जाए. तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स राइट नाउ, आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स. तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र करके एक योजना है. ठीक है, फिर देयर इज अ Ma'am, Deepika Sinha has one question. She wants Yes. to explain this Stand Up India concept again. Okay, I'm just coming again to the Stand Up India. Okay, so Stand Up India scheme, ये जो स्कीम है ये आई थी उन लोगों के लिए, स्पेशली इन्होंने कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया था. वन इज वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो जो कोई भी वुमेन या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है और उनके पास कुछ एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है, दैट दे वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट से इसके लिए फंडिंग ले सकते हैं. मतलब अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और आप उस प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं, आपके पास आइडिया है, प्रॉब्लम वही आपके पास पैसे नहीं है. तो जब आपके पास फंडिंग के लिए पैसे नहीं है तो आप इस स्कीम के अंदर जाइए और आप एप्लीकेशन लगा के उनसे सरकार आपको पैसा देगी अपना बिजनेस चलाने के लिए. तो दिस इज स्टैंड अप इंडिया. एंड स्टैंड अप इंडिया सिर्फ वुमेन और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है. वुमेन के लिए इसलिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए, दोनों के लिए ही इसलिए शुरू किया है बिकॉज दे आर द part of our section of our society which are lacking behind. तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और वुमेन दे आर स्टिल लैकिंग. तो उनको आगे लाने के लिए, उनको भी डेवलप करने के लिए ये स्कीम लेके आई गई है. ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो वुमेन बोरोवर होगी या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होंगे. ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लोन है 18 ईयर्स एंड अबव अगर हो आप. ठीक है, और अगर आपने किसी और बैंक से लोन लेके डिफॉल्ट नहीं किया तो आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो. आई होप नाउ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज क्लियर. And for if you see, let me just see the chat. Okay, so now this Stand Up India is clear to Miss Deepika. Okay, so there is a lot of things in this particular scheme as well as in other schemes. अगर आप देखें तो बहुत कैसे लोन वापस करना है, कैसे आपको मार्जिन मनी डिपॉजिट करना है, तो बट मैं इसे अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही. उसके बाद स्टार्टअप इंडिया में हम आए थे तो 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी, स्टार्टअप इंडिया. बेसिकली वही स्कीम है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड दे वांट टू ओपन अप विद समथिंग, दे हैव सम न्यू आइडिया, दे कैन कम इन द स्टार्टअप इंडिया. स्टार्टअप इंडिया बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ है, स्टिल इट इज वेरी फेमस एंड पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज अंडर द स्कीम. क्योंकि अगर आप स्टार्टअप हो तो यू हैव टू पे अ लेसर टैक्स. ठीक है, तो यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी स्कीम्स अभी हम पढ़ रहे हैं ऑल आर अंडर नरेंद्र मोदी जी ओनली, बिकॉज दी स्कीम्स, ये जो स्कीम्स आई थी ये सारी अभी की ही स्कीम्स हैं और ये सारी नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च कराई हैं. ठीक है, चलो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इनकम टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप इंडिया को मिलता है. सिमिलरली रजिस्ट्रेशन के लिए भी, अगर आप एक
कंपनी बनाने जाते हो तो बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, देयर इज अ समथिंग यूज कि आपको टाइम चाहिए। बट अगर आप स्टार्टअप इंडिया से जाओ तो आपको सिंगल विंडो मिल जाता है। मतलब द मेन फोकस है कि आप अपना बिजनेस करो, आप प्रॉफिट कमाओ और आप अपनी सोसाइटी, हमारे लिए भी, मतलब गवर्नमेंट के लिए कुछ करो। बाकी सारी जो चीजें हैं इट्स इन अ बैक सीट। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ऑल ऑफ दिस हैज बीन कवर्ड मेरे हिसाब से। हाँ, so if I go by one, so this will become a very lengthy introductory subject. So with this, I think I have covered most of the important part. I'm just looking if there is something which is very. So I don't think I can go ahead with any other topic right now, but I assure you that this particular subject with this particular topic is so good. If I can take number of lectures, number of hours, it can never end. So with this, I think if any one of you still have any doubt, you can still ask, or I'll close this particular lecture. And I hope you all understand and understood what is actually this schemes and initiatives and this particular subject. थैंक यू Thank मैम, you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, आज आपने पढ़ा कि ये जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करी गई है। और अगर आपको इसमें और भी डेप्थ में जानना है कि सब्जेक्ट में और क्या है और कैसे पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे पास ये ऑलरेडी सब्जेक्ट अवेलेबल है। यू कैन सब्सक्राइब, इधर यू कैन वॉच ट्रायल लेक्चर, फर्स्ट 4 लेक्चर विल बी ओपन फॉर योर ट्रायल। मैम प्लीज टीच अस फॉर 1 hour on daily basis। Sneha Agrari, uh, ma'am is also practicing CS, so it won't be possible from her side, but definitely उन्होंने अपनी क्लासेस दी हुई है सुपर प्रॉप्स को, और आप चाहो तो हमारी वेबसाइट से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और आप उसको अपने जब भी आप फ्री हो, जिस भी टाइम आप चाहो, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम वॉच के साथ। और ऑफ कोर्स जब भी आपको इस तरह की कोई क्वेरी या आपको डायरेक्टली मैडम से कोई बात करनी है, आप उनसे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो, या इस तरह के सेशन में आप उनके साथ कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। साथ में मैंने आपको ऑलरेडी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके CSEE के लिए सुपर प्रॉप्स ने बनाया, उसका लिंक, साथ में हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है। आप वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस तरह के जो भी फर्दर हम फ्यूचर में सेशंस करेंगे फॉर CSEE एग्जाम, यू विल गेट नोटिफाइड फ्रॉम दीज चैनल्स। सो आप उस टाइम में आके लाइव सेशन अटेंड करके आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो मैडम से रिजॉल्व कर सकते हो। तो गाइज मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सेशन रहा, आप लोग ने भी बहुत अटेंटिव तरीके से इसको अटेंड किया है, एंड थैंक्स फॉर बीइंग दिस वंडरफुल ऑडियंस। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो वी आर क्लोजिंग दिस फॉर नाउ, एंड विल कनेक्ट अगेन एट द सेम टाइम, एंड विल notify you if there is any session we will plan in future. Thank you guys, thank you everybody, thank you ma'am. Thank you. Thank you.